gap between these two cities. So we have to bridge that gap, and only way to bridge that gap is screening, prevention, educate. Huma and Imran should educate everybody in Amritsar, 100 kilometers, 200 kilometers from Amritsar, that this disease can be prevented. All the girls should get cervical cancer vaccine. Honorable Finance Minister has declared that all the girls will get cervical cancer vaccine in Indian immunization program. So we all have to come up and go for this cause. अगर हम करेंगे तो हम जीत लेंगे. Cancer Institute Amritsar, and they have to do whatever the rest of India is doing, and we are proud of both of them. Thank you so much. Doctor, I have a question. Right from morning, we are now more educated on cancer, right? So the fundamental question is, or the answer is, early detection. Now, I would like you to tell us how can we get that early detection done? Because I as a layman do not know what are the tests we can undergo which can help us in case we have a detection. What's your age, sir? I am 61. Are you a smoker? No, I don't. So you should get your colonoscopy, you should get your PSA test done, that's all. So अभी कोलोनोस्कोपी आपने रेंज दी है कहीं PSA कराया? 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करानी है, एक टेस्ट PSA कराना है. मेल में सिर्फ यही कर सकते हैं. फीमेल है तो एक मैमोग्राफी करानी है, एक पैप स्मीयर टेस्ट कराना है. स्मोकर है तो HRCT टेस्ट कराना है. कुछ और सिम्टम है तो अपने नियरेस्ट कैंसर सेंटर में जाना है. Very good. So this should be done once or twice. Any chronic symptom, जड़ा कोई भी सिम्टम है ना, जड़ा जा नहीं रहा, वो कैंसर हो सकता है. That's a mantra. So we say that there are 7 or 6 telltale signs of cancer. Any symptom which is not going, which is there in the body, you should go and you should just think of that it could be cancer. If you think, then you will proceed for that test. And there are, every city of India has a medical oncologist, surgical oncologist. Male or female, at what age you are. So we say that cervical pap smear should be done after the age of 35 years. Self breast examination should be done after 30 years, and mammogram annual or biannual or once in 2 years should be done after the age of 40. And smokers should get their HRCT test done. In elderly who have urinary symptoms, we should do a PSA test done. After 50 years, we should get a colonoscopy. So this is not something I'm speaking. इसमें कोई वो नहीं चाहिए. A journal practitioner, a healthcare worker in a community knows this. But you have to come up for these tests. Insurance करा लेते हैं, लेकिन अपना स्क्रीनिंग नहीं कराते. So we will request Dr. Huma. She is a medical oncologist at Fortis Hospital, Amritsar. As far as the onco care in this city is concerned, I think she has been able to bring, along with Dr. Imran, so both of them have been able to bring in latest technologies, latest practices in oncology to the city, and I'm sure that she will share a little more about the same. कैंसर अर्ली स्टेज में प्रिवेंटेबल है, अर्ली स्टेज में ट्रीटेबल है, और स्क्रीनिंग से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं. तो एज अ फीमेल आई नो देयर आर many पेशेंट्स ओवर देयर जिनको नॉलेज नहीं है कि बहुत सारे जो फीमेल ओरिएंटेड लाइक फीमेल कैंसर्स हैं उसमें क्या स्क्रीनिंग है या क्या प्रिवेंटेबल मेजर्स हैं. मोस्ट कॉमनली जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40-45. वी हैव टू स्टार्ट विद मैमोग्राम. उसके बाद अगर बात करें जो सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है जो सर्वाइकल कैंसर है in India, it is the second most commonest cancer in females. इनमें हम पैप स्मीयर कर सकते हैं which is to be started after the age of 21, and more importantly it is a vaccine preventable cancer जिसमें हमें अगर हम आम लोगों को जागरूक करें इस चीज़ के लिए कि वैक्सीन अवेलेबल है किसी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, वो है सर्वाइकल कैंसर. Who can avoid cancer? That is what you are saying, right? Cervical cancer is a vaccine preventable cancer and it is already available. It is already being used in the West. They have seen significant
significant impact on the I mean, X-rays or something like that? usually the vaccination is done in the age of starting from 9 up to 12 years, 11 or 12 years. It should Program prevention is for cancer, those are very common. So in male it is head and neck cancer, lung cancer, and in female it is breast cancer and cervical cancer. So any government directed or private directed program can be done for a most common cancer. We cannot screen population for brain cancer. That is not cost effective. So screening has to be done for a cancer which can be cost effectively detected early and can be treated. So brain cancer is a rare cancer. We don't find brain cancer routinely. So Fortis Memorial Institute, because of certain doctors, very famous doctors, we are center for brain cancer for neurosciences, but it's not found that common in a routine population. मैं डॉक्टर विश्वदीप गोयल जोनल डायरैक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਹਾਰਲੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਏ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ weight ਘਟਣਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ HPV ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਕਸਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 10,000 ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਲੀ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ जी मैं डॉक्टर हुमा नूर आई एम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आई एम फ्रॉम फोर्टिस अमृतसर
and I am here for this event on cancer awareness on the eve of World Cancer Day. इसमें आज हमारा ये लोगो था टू रिड्यूस द केयर गैप, मतलब कि जो कैंसर में न्यू एज ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो अवेलेबल कैसे होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा लोगों को कि कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कैसे आसानी से उन तक पहुंचेगा, उसके बारे में ये इवेंट था। और अवेयरनेस थी कैंसर की प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेडिसिन से ज़्यादा अवेयरनेस जरूरी होती है, क्योंकि काउंसलिंग जब अब किसी भी पेशेंट की करें तो लगता है कि मेडिसिन को कम यूज होगी। जी, ऐसा सही है कि कुछ कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, कुछ कैंसर्स अर्ली स्क्रीनिंग से डिटेक्टेबल है अर्ली स्टेज पे, और उससे उनके ट्रीटमेंट पे और उनके आउटकम पे बहुत इम्पॉर्टेंट असर पड़ता है, उनकी लाइफ बढ़ती है। जैसा कि लेट स्टेजेस में अगर कैंसर डायग्नोज होगा, उनका ट्रीटमेंट भी कॉस्टली होता है और उनके सर्वाइवल भी कम के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि स्क्रीनिंग ज़रूरी है कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए आगे चल के। मैम, जेंट्स लेडीज़ में दोनों में अगर कैंसर की कोई होती है तो कौन कौन से टेस्ट उनको करवाने चाहिए कि ताकि उनको कैंसर के बारे में पता लग सके? और उसके साथ सर्वाइकल कैंसर जो खासकर जो परसों हमने बजट में भी देखा है, जी, वो क्या है? जी, बीइंग अ फीमेल लेडीज़ के कैंसर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ब्रेस्ट कैंसर जो कि दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अगर सबसे कॉमन कैंसर दुनिया में देखा गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और उसके बाद इंडिया में अगर देखा गया फीमेल्स में जो सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। अर्ली स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में भी अवेलेबल है और सर्वाइकल कैंसर में भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो जो कि डिफरेंट एजेस पे स्टार्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर देखा जाए तो 40-45 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है जनरल पॉपुलेशन, जनरल रिस्क ग्रुप में, और सर्वाइकल कैंसर्स में स्क्रीनिंग 21 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है। और स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर में जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर वैक्सीन एज टीन एज में किया जाए या अर्ली एडोलेसेंट एज में किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स प्रिवेंट हो सकते हैं। तो उसके बारे में हमें आगे चल के ज़ोर देना चाहिए कि क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लेंथी होता है और उसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी होती है, और जो स्टेजेस जिसमें हम अपने पेशेंट्स देखते हैं बहुत एडवांस्ड होते हैं। तो बेटर है कि आगे चल के हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इसमें वैक्सीन अवेलेबल है, और स्क्रीनिंग जो वैक्सीनेशन नहीं ले पाए उनमें स्क्रीनिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, ताकि अर्ली डिटेक्शन से उनको आगे चल के इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼, ਮੈਂ ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈल्प कर सकती है कैंसर ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ। जी, तो मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हम कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक एम ये है कि कैंसर अवेयरनेस जो आम लोगों में बहुत ज़्यादा कम है उसके बारे में थोड़े लोगों को जानकारी मिल जाए, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक इवेंट हुआ है जिसमें हम लोगों के बारे में कैंसर अवेयरनेस के बारे में पता होनी चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन, किसी को भी किसी भी टाइप की कोई भी सिम्टम आ जाए, वो खाना पीना कम हो, कोई गांठ निकल आती है, किसी को पेट में कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी आता है, तो उसको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लोकल डॉक्टर को। तो उसके द्वारा अगर कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो और आगे अगर हो सकता है कि कैंसर का कुछ निकल आता है, तो अर्ली स्टेज में हम चाहते हैं कि कैंसर को पकड़ा जाए।
और गॉड फॉरबिड अगर लेट स्टेज में भी आ जाता है तो उसके भी अपने हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट हमारे फोर्टिस अमृतसर में अवेलेबल हैं। आपको जस्ट नियर बाई फुट स्टेप पे बेस्ट पॉसिबल फोर्टिस कैंसर के द्वारा हम ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना चाहते हैं। ये हमारा मेन एम है। सर अगर बात करें कुछ गरीब परिवार होता है जिनके पास पैसे नहीं होते, जी जी, क्या उनके लिए सहूलत भी होती है आपकी तरफ से? तो हमारे पास एज ऑफ नाउ फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रावधान हम कर सकते हैं आपकी मीडिया के द्वारा कि एक NGOs होते हैं, तो उनमें हम अगर उनके थ्रू हम कोलैबोरेशन करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगा कि कई एक दवाइयाँ हैं, एक न्यूरोलॉजी की एक दवाई आती है वो 18 करोड़ रुपए की है, 18 करोड़ रुपए, तो उसकी दवाई बेचारे बच्चा बहुत गरीब है, एक दवाई लगकर वो दवाई एक NGO ने प्रोवाइड करी थी उसको, तो हमारा इलाज तो उतना महंगा है नहीं, 5-6 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक अगर माना जाए तक हो जाता है। आपका कहना कि मेडिसिन महंगी है, इलाज से सस्ता है? मेडिसिन डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में है, तो नेचुरली जिसका पेशेंट का पैसों का इशू रहेगा तो उनके लिए वैसे वाली दवाइयाँ तो हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे। हमारा मेन एम है कि एटलीस्ट 100% नहीं, एटलीस्ट 80% इलाज ठीक से हो जाए। ऐसा ना हो कि 20% इलाज करने के लिए हम दवाइयों का पेमेंट का कोई ज़्यादा हो जाए, तो वैसा वाला नहीं है, लेकिन NGO के द्वारा हम कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा आपका भी मीडिया के थ्रू और थोड़ा लोकल कम्युनिटी के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। मैं संजय डावर दिल्ली हार्ले डेविडसन कैपिटल चैप्टर हार्ले डेविडसन से हूँ, और हम लोग ये कैंसर की राइड कर रहे हैं जो कि बहुत स्पेशल राइड है, क्योंकि 4 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल कैंसर डे मनाते हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि लोग अवेयर हों कि कैंसर कोई स्टिग्मा नहीं है, आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हो, इससे निकल सकते हो। क्यों? द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप अर्ली डॉक्टर से पास जाएंगे, अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं तो ये क्योरेबल है। आज की डेट में इंडिया के अंदर इतनी तरक्की हो गई है और हमारे पास बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं, तो हम लोग इस अवेयरनेस राइड को दिल्ली गुड़गांव से लेकर, और उसके बाद हमने राइड मोहाली, फोर्टिस मोहाली, फोर्टिस लुधियाना करते हुए हम लोग फोर्टिस अमृतसर आए हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को ये बताना कि हम लोग अगर अवेयरनेस कर सकते हैं तो यही एक साधन है जिसमें लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। नंबर ये राइड शुरू हुई कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली और गुड़गांव। कहाँ से समाप्त होगी? ये राइड दिल्ली गुड़गांव से शुरू की है हमने, जो हमारा फोर्टिस गुड़गांव का ऑफिस है वहाँ से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे शुरू की है, और इसका समाप्ति जो है वो फोर्टिस अमृतसर मींस हमारे यहाँ से होगी। कैसे ध्यान रखना चाहिए लोगों को, कैंसर कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम? मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ बाय द वे। 2017 में मेरे को लिम्फोमा कैंसर हुआ था और मैंने बहुत सफ़र किया कैंसर को। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस ये कैंसर को लोगों को बताना है। अगर मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार समझिए कि मैं बच गया, इन द सेंस मेरे को जैसे ही पता चला कि मेरे फेस पे सूजन है, मैं इमीडिएटली डॉक्टर अंकुर महल के पास गया। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, उन्होंने कहा आपको कैंसर है। मेरा इलाज हुआ, 1 साल मैंने रेस्ट किया, कीमोथेरेपी कराई, रेडिएशंस कराई, और आज आपके सामने बिल्कुल ठीक हुआ हूँ और स्वस्थ हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरी अपनी मेंटल विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी भाई बहन फैमिली में कोई कैंसर हो, आप परिवार का एक हिस्सा बन के उनके साथ रहें, उनको सपोर्ट करें। और आप इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो लोग सोचते हैं। आज का हर तीसरे इंसान को कैंसर हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि रिकवरेबल नहीं आप कर सकते। मेरा नाम अमित गुलाटी है और मैं हार्ले डेविडसन राइड करता हूँ, और मेरे को पिछले 6-7 साल से मैं राइड कर रहा हूँ, और हम बहुत सारे कॉजेज़ के लिए राइड करते हैं। क्या मकसद है आपका? आपने यहाँ पे जो राइड्स करके आए हो, क्या मकसद है आपका? जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे कॉजेज़ के लिए राइड करते हैं, जैसे गर्ल एजुकेशन, पोल्यूशन। तो आज बहुत ही अच्छा कॉज है जिसके लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। वी आर डूइंग अ अवेयरनेस फॉर कैंसर, एंड आज की डेट में कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट। दे शुड गो, अपना टेस्ट कराएं और अपने बारे में मतलब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्टेज बहुत आगे चली जाती है तो उसका इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं आप सबसे यही बोलूँगा और अपने सभी भाई बहनों से यही बोलूँगा कि आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, और अगर आपको ये लगता है कि आप कैंसर नहीं है आपको, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो आपका इलाज जल्दी हो जाएगा। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोग दिल्ली से आए हैं,
फोर्टिस वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है और हम सुबह से निकले हुए हैं और रात हो गई है, बट हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम एक अच्छे कॉज के लिए राइड कर रहे हैं। So Indian government recently जो सर्वाइकल कैंसर ओनली स्पेशली लेडीज, उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी अवेयरनेस को लेकर एक बड़ा कदम है। देखिए, अभी आपने बहुत रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, कल परसों पूजा जी का डेथ हो गया। शी वॉज अ वेरी अपकमिंग, उनको पता ही नहीं था सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जब स्टेज 3 या 4 हो जाता है बहुत लेट हो जाता है। तो कैंसर के लिए एक टेस्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपना टेस्ट कराए, बायोप्सी कराए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कैंसर है या नहीं है और किस स्टेज में है। अगर आप अर्ली स्टेज में अपना डिटेक्ट करा लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको उसमें हेल्प मिलती है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और लेट हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर तो भगवान ही मालिक हो जाता है। सर, राइड के जरिए कैसे आप अवेयर कर सकते हैं, मतलब कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग राइड करते हैं तो हमारे को सारी दुनिया दिखती है, क्योंकि ये हार्ले डेविडसन बाइक है। एक बाइक की कीमत 30 लाख रुपए है और हम पूरे गेयर्स में जाते हैं और हम जिस जगह से जाते हैं, बच्चे, फैमिलीज़ हमारे साथ फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं, बहुत पॉपुलर है ये। तो हम इसके ज़रिए, हमारा पैशन था राइड करना, हमने पैसे खर्च के अपनी बाइक ली, बट उस बाइक का और भी अच्छा उपयोग हमने कैसे किया कि लोग तो हमें पहले भी देखते थे, बट उसके साथ साथ हमने इस कैंसर ट्रीटमेंट को अपने साथ लेके चले और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ मुलाकात की। रास्ते में काफ़ी लोग मिले, हमने उनको बताया कि हम किस कॉज के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपना टेस्ट ज़रूर कराएंगे। तो आई थिंक इट रियली वर्क वेरी वेल।